everyone. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I am the host for today. So I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning, Guruji ke Saath Gurwar, which we started on 2nd June 2022. So this is our 23rd lecture, and I feel very, very happy to welcome and introduce today's speaker, Dr. Pranita Patil from Virar. So Dr. Pranita has completed her BHMS from Virar Homeopathic Medical College, Virar. She is practicing homeopathy since last 10 years. And after coming to Mind Method, she is growing tremendously. And because of not because of anything, but because of her intelligence, her consistent efforts and sincerity. So she is our youngest of the admins, but still she is the most responsible admin mentor. She takes care of all the courses of the Ignited Minds by PHF, and she's a very good speaker too. So we will get to know through her lecture. And so let us welcome our rock star, Dr. Pranita Patil, with a round of applause. Welcome, dear Pranita. Thank you. Welcome, ma'am. Madam, for such a warm welcome. Welcome. Thank you everyone for joining. So, first of all, thanks to my mentor, my Guruji, Dr. Liaquat Namoudi sir, for giving me this opportunity and starting this wonderful series of 100 free lectures on Zoom. So we all know it is helping us a lot, and in every session, sir gives us wonderful tips. Apart from speaker, whatever sir is giving us is always helpful, and it's really amazing. So thank you everyone for joining. So we'll start with today's topic. So today's topic is infertility. I took 4th lecture of this series, and there also, we discussed about infertility. So this will be the second part of infertility. So I'll share a case with you, case of couple. So we'll first narrate a case of female. So both of them entered, sat down, and this couple is known to me. मतलब इसका जो husband है वो मेरे friend circle में आता है. तो वो लोग आके बैठे, तो मैंने बोला बोलो. तो वो बोली, उसकी वाइफ बोली कि क्या बोलूं. मैंने बोला कुछ भी बोल, जो भी तुझे बोलना है बिंदास बोल. तो उसने बोला कि अभी फिलहाल एक ही चीज बतानी है कि मिसकैरेज के बाद, मतलब इनका कुछ महीने पहले लास्ट ईयर मिसकैरेज हुआ था. तो बोली कि मिसकैरेज के बाद कंसीव नहीं हो रहा है. वी हैव बीन ट्राइंग सिंस लॉन्ग बट नो लक. मतलब मिसकैरेज होने के बाद 3 मंथ्स हो गए, मिसकैरेज हो गए. उसके बाद से हमने वापस कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक कंसीव नहीं हुआ. तो मैंने पूछा कि क्या लगता है तुझे इसके बारे में. तो वो बोली कि आई एम बीइंग पॉजिटिव दैट इट विल हैपन, बट कभी कभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि और कितना टाइम. गायनाक के पास गए थे, उन्होंने बोला कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ. तो मेरा एक ही कंसर्न है मेन कि I am 35 plus and he is also 35 plus. तो और कितना रुके ना, और कितना वेट करेंगे. मतलब बोली कि मेरा ऐसा है कि बच्चे का एजुकेशन होने तक तो हम दोनों जॉब पे रहे, तो वो टाइम लिमिट में रहेगा तो वो अच्छा रहेगा. तो बोली कि और प्रैक्टिकल सिनारियो देखे तो ऐसा भी नहीं है कि वी हैव सो मच ऑफ प्रॉपर्टी एंड देन वी कैन सर्वाइव ऑन दैट. तो बोली कि इसके लिए अगर एज लिमिट में हो जाएगा तो वो अच्छा रहेगा.
इसके लिए आई एम बीइंग लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, बट बहुत ज्यादा नहीं रहता फ्रस्ट्रेशन। तो उतने में उसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं, ये फ्रस्ट्रेटेड रहती है। तो वो लड़की ने स्माइल किया और बोली कि बट इतना भी नहीं, उतने वक्त के लिए आता है, फिर बैक ऑफ द माइंड वो चीज चलती रहती है। तो मैंने बोला क्या थॉट्स आते हैं फिर? तो बोली कि फिर उसने ऐसे किया, वही कि कब होगा, कैसे होगा। तो बोले कि और शादी के बाद भी हमने इमीडिएटली प्लान किया था कंसीव करने के लिए, क्योंकि अ, हम दोनों भी 35 प्लस है, और यही रीजन था कि हम लोग ने वेट नहीं किया और हमने इनिशिएटली डिसीजन लिया था कि वी विल प्लान अ बेबी। But Boliki, everything was going so nicely, and I don't know what happened suddenly on that day. And she just kept quiet for a fraction of seconds, and then she said, "Of course, because of him, I could overcome that phase." और बोली उसके बाद ऐसे पॉजिटिवली लग रहा था, अब होगा, अब होगा, अब होगा। बट बोली इट हैज नॉट हैपेंड। इट only कि it happened in December, मतलब miscarriage दिसंबर में हुआ था। Now it is September, and in another 3 months it will be a year। अभी तक मतलब कुछ सक्सेस नहीं हुआ, अभी तक कंसीव नहीं हुआ। तो मैंने उसको पूछा, कुछ पर्सनल सवाल पूछो तेरे से? तो बोली हाँ। बोला ऐसी कोई चीज है जो तुझे माँ बनने से रोक रही है, या कुछ भी है, ऐसा स्ट्रेस है, वो फाइनेंशियल होगा या और कुछ भी है जिससे लगता है कि हम बच्चा होगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा, ये कुछ फेस करना पड़ेगा। तो बोले कि फाइनेंशियल, यस फाइनेंशियल स्ट्रेस तो होता है। तो बोली कि बट for that matter also, I'm that much of confident that I'll take care of my child. I will take care of my child very nicely. My husband, my kid, my my house and everything I can take care well. So but only for that matter I need my husband's support, and it is there. तो मैंने बोला ओके। फिर तुझे किसी चीज से डर लगता है? तो बोली डर नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, बट आई हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सो अभी मुझे डर नहीं लगता है। और अभी ऐसे लगता है कि मैं पहले क्यों डरती थी, अभी ऐसे लगता है। तो अगेन आई टोल्ड हर कि कुछ पर्सनल पूछो क्या? तो बोली कि हाँ। मैंने बोला तुझे ऐसे लगता है क्या, ये मतलब उसका हस्बैंड तेरे बच्चे की केयर कर पाएगा या उसको अच्छे से संभाल पाएगा? ऐसे दिस इज इम्पोर्टेंट टू आस्क, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ। तो उसके हस्बैंड ने इनिशिएटली बोला कि नो नो आई कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, इफ यू वांट आई विल सिट आउट। तो उसने इमिडिएटली हस्बैंड को बोला कि doctor is not asking you to sit outside. You should also know what I am thinking. It is, as a doctor, it is important for her to understand what I am thinking, to know what I am thinking, but at the same time you should also know. And immediately उसने वही conversation के साथ बोला, I am sorry, but he takes too much of time to take decision. ये बहुत वक्त लगता है डिसीजन लेने में, मुझे इसके पीछे पड़ना पड़ता है। He knows one thing, for that I am behind him constantly. और इस बात को लेके every second day हमारे बीच झगड़ा भी होता है, but only because of that thing I get frustrated. But one more thing is there, अगर हम दोनों में से कोई अच्छा पेरेंट बन सकता है तो that is him, my husband। मैं तुझे बताती हूँ, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आए, बच्चा रो रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं पहले जाके मेरा काम देखूंगी, लेकिन ही विल बी द फर्स्ट पर्सन, सब कुछ छोड़ के, काम छोड़ के वो बच्चे के पास चला जाएगा। ओके, तो ऐसे तुझे जो भी चीज है उसकी पसंद नहीं आ रही है, जो भी चीज, उसके लिए तुझे क्या लगता है, मतलब तुझे कैसे अफेक्ट करती है? बोले कि आई गेट डिस्टर्ब बाय दैट बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर फाइनेंसेस।
सो मैंने पूछा कि मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस है, तो बोले कि है बट 24/7 नहीं रहता है, जब भी वो बात दिमाग में चलती है तभी मैं सोचती हूँ, लेकिन फिर जब मैं काम करती हूँ या व्हेन आई एम इनटू किचन आई एम वर्किंग और मैं मोबाइल देख रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, तो उस वक्त के लिए मैं भूल जाती हूँ। बट जब भी मुझे ये बात याद आती है मैं मन में नहीं रखती, मैं जाके उसके साथ झगड़ा कर लेती हूँ। तो बोली कि इसके लिए तो मैंने उसको पूछा और कुछ पर्सनल सवाल पूछूंगा, क्यों चाहिए बच्चा तुम्हें, ये पूछना जरूरी है दवाई देने के लिए। तो बोले टू कंप्लीट आवर फैमिली, ऑफ कोर्स बिकॉज हम दोनों का रहेगा वो बच्चा, एंड दैट्स द रीजन वी वांट, नॉट आई वांट। तो बोली कि मैंने उसको बोला कि हाँ आई एम टॉकिंग टू यू नाउ, इसके लिए नो आई एम आस्किंग यू। बोली कि हाँ या दैट दैट आई अंडरस्टैंड। बोली इसके लिए मैंने बोला कि ही इज फॉन्ड ऑफ किड्स वेरी मच, तो इसके लिए मैंने बोला कि हम दोनों में अगर बेटर पेरेंट कोई बन सकता है तो दैट विल बी माय हस्बैंड। तो दिस इज द केस ऑफ फीमेल। ओके, सो लेट्स गो टू मेल। मैं दोनों का केस नरेट करती हूँ, देन वी विल डिस्कस, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, उनका जो आईटीआर है वो समझ पाओगे आप। ठीक है, तो अभी मतलब ये बात करते करते ही बिफोर आई स्विच माय कैमरा टुवर्ड्स हिम, उस वो सब फ्रेंड सर्कल में है, तो ही वाज टॉकिंग कि किसी ने उसको हेयर फॉल के लिए बहुत महंगा शैम्पू प्रिस्क्राइब किया था, तो वो बोल रहा था हेयर फॉल हो रहा है वगैरह इस तरीके से। तो मैंने बोला ठीक है मैं तेरे को पूछ देती हूँ। तो बोले कि एक्सपेंसिव मत देना। तो मैंने बोला कि अरे टेंशन मत ले, चाहिए तो तू पैसे बाद में दे दे, अभी कुछ मत दे, और मैं बाद में तेरे से चेक ले लूंगी। तो बोला कि अरे नहीं तो मैं फिर भाग जाऊंगा, तू मतलब ऐसा साथ में इतना अमाउंट। तो उसके बीच वाइफ बोली कि डोंट वरी आई एम देयर फॉर इट। तो बोले कि दैट्स व्हाई आई सेड कि आई एम कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माय चाइल्ड। तो मैंने इसको पूछा लड़के को कि कुछ स्ट्रेस है क्या, तो बोला कि जॉब का स्ट्रेस है बहुत, आई नेवर नो व्हाट विल बी द स्टेट इन ऑफिस टुमारो। बोले कि ऑफ कोर्स वो टेंशन तो रहेगा ही ना, उस वजह से बहुत टेंशन, उस वजह से बहुत टेंशन रहता है इसे। और बोला कि लॉकडाउन में क्या हुआ ना, हमारे ऑफिस के काफी एम्प्लॉयज को निकाल दिया, तो अभी किसका नंबर रहेगा पता नहीं। तो मेरे से कुछ मिस्टेक्स भी हुए थे, वो भी उन्होंने कंसीडर किए हैं, तो उसके लिए बैक ऑफ द माइंड वो स्ट्रेस रहता है। तो ऐसे मतलब तुझे जॉब का टेंशन आता है, तो बोला कि हाँ इनसिक्योर फियर, ऐसे उसने बोला। तो बोले कि ही इट इज अ रूल ड्रिवन कंपनी नॉट एम्प्लॉय ड्रिवन। बोले कि एमएनसी सिर्फ नाम के लिए है। मैंने फिर उसका मेनली तो वो इनफर्टिलिटी के लिए आए थे, तो मैंने पूछा उसको कि प्रेगनेंसी के बारे में क्या लगता है, उसकी वजह से क्या लगता है मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। तो बोला कि नहीं कुछ नहीं, पहले जो हुआ उसके बाद मैं डिप्रेस था, बट यस आई कुड ओवरकम अर्ली, मतलब हम दोनों में मैंने सबसे पहले ओवरकम किया था, क्योंकि ओवरकम करना ही था ना, उस बात में हम जितना सोचेंगे उतना वो अटक के रह जाएंगे, तो हाँ मुझे ओवरकम करना ही था। तो बोले कि मैंने पहले ओवरकम किया। सो दिस इज द केस। सो एनी इनपुट्स फ्रॉम योर साइड? हेलो मैम। हाँ सर बोलिए। लेडीज डल कैमरा लगी और वो हस्बैंड कैलकुलेट कर क्या फीमेल क्या लगी? डल कैमरा। डलका मारा? हाँ क्यों क्यों डलका मारा? प्लीज रूब्रिक के साथ एक्सप्लेन करो रेमेडी। वो डिक्टेटोरियल है और वो हस्बैंड की कोल्डनेस से परेशान है शायद।
वो हाँ, उतनी स्पीड से करता नहीं ना वो। अच्छा, कोल्डनेस। हाँ, कोल्डनेस कैसे लिया आपने? उतना एक्टिव नहीं है ना वो हस्बैंड। अच्छा, हाँ, बट कोल्ड में कैसे ना सर? कोल्ड मतलब एकदम ठंडा ना, कुछ भी नहीं करेगा, इसका ऐसा है क्या कि एकदम ठंडा है, कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे घर पे बैठा हुआ नहीं, वर्किंग, ही इज डूइंग थिंग्स, बट उसको वक्त लगता है डिसीजन लेने के लिए, ऐसा नहीं कि वो कर रहा है। कोल्ड विल बी लाइक एकदम कोल्ड ना, ठंडा। ओके। हेलो, यस मैम। और कुछ? और किसी को कुछ बोलना है? मैम मैं बोलूं? मैडम उसका रिएक्शन क्या है, उसको हस्बैंड के बिहेवियर को लेके रिएक्शन क्या है? नहीं, जो भी है मैंने बताया ना, वही है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, कि वो अच्छा, डिसीजन लेने में वक्त लगाता है इसे, मतलब बोलेगी मुझे उसके पीछे पड़ना पड़ता है, वो एक चीज के लिए कंटिन्यू, तुरंत डिसीजन नहीं लेता है, वक्त लगाता है। हेलो हेलो यस सर। मैम, लेडी इग्निशिया लगी, फियर इनवैलिडिटी और एंजाइटी मनी मैटर अबाउट। अच्छा, क्योंकि वो कह रही है ना मेरी 35 की एज हो गई है, तो उसके हिसाब से उसको इस एज तक बेबी हो जाना चाहिए था, अच्छा, क्योंकि फिर आगे बट जब आगे इनवैलिड दिक्कत। में क्या? इनवैलिड में सर वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऐसा रहता है ना, तो ऐसा है क्या 35 के बाद कंसीव नहीं कर सकते? मैम उसके हिसाब से तो एज उसकी हो गई है ना, क्या नाम है क्या? उसके हिसाब से तो उसकी एज हो गई है ना, इसलिए कि अब तक तो मुझे हो जाना चाहिए था। अच्छा, बट उसके बाद होगा नहीं ऐसा नहीं है ना, ओके वैलिडिटी खत्म हो जाती है, मतलब एज लॉन्ग एज फीमेल इज मेंस्ट्रुएटिंग शी कैन कंसीव, मतलब देयर आर चांसेस दैट शी कैन कंसीव। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मुझे ये लेडी में क्लैरिटी ऑफ माइंड लगी कि उसने जो बोला था कि बच्चा एट द एज होना चाहिए, हम दोनों की जॉब भी रहनी चाहिए, तो उससे मुझे लेडी की क्लैरिटी ऑफ माइंड लगी। एंजाइटी अबाउट मनी मैटर्स, ये लेडी कहीं तो रुब्रिक डिक्टेटोरियल क्या है? लगी। रुब्रिक क्या है? एंजाइटी, एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, हाँ यस मैम। तो यहाँ पे मैटर है क्या कुछ पैसों का लेके? एवरी जैसे सर हमें सिखाते हैं, फॉर ईच एंड एवरी रुब्रिक, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ रुब्रिक इज इम्पोर्टेंट। अगर एंजाइटी अबाउट मनी मैटर्स है तो एंजाइटी मनी मैटर ये सब इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली कि एंजाइटी है पैसे के रिलेटेड है तो वो मैटर भी होना चाहिए। सो इज इट सम मैटर ऑफ मनी? नो मैम। मैटर कभी होता है जा कहाँ पे पैसे अटक गए या कुछ है, लोन है, वहां पे हम सोच सकते हैं। ओके मैम। हेलो मैम। लेडी में हाँ, मुझे हाँ, लेडी में मुझे लगा कि वो सब पूरा प्लान करके रख रही है कि इतने एज में ये हो जाना चाहिए, हमने शादी इसलिए इस एज में, पर्टिकुलर एज में की, और बच्चा भी इस एज में, क्योंकि रिटायरमेंट के पहले बच्चे का एजुकेशन, मतलब उसने जैसे कि अपना लाइफ ये प्रोग्राम करके रखा है, प्लान करके रखा है। सो मे बी रूब्रिक प्रोग्रामिंग एवरीथिंग ये शायद हो सकता है। अच्छा, प्रोग्रामिंग। एवरीथिंग।
हेलो। प्रोग्रामिंग एवरीथिंग ऐसा रुब्रिक है, तो मुझे लगा वो प्रोग्राम कर रही है अपना लाइफ, तो प्रोग्रामिंग एवरीथिंग यही रुब्रिक सिर्फ ध्यान में आया। अगेन एबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। अच्छा। हमको कैसे समझेगा एबिलिटी है नहीं है? सिंपल सोचो। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम, आफ्टर हर मिस कैरेज नाउ, इवन दो शी इज पॉजिटिव कि हो जाएगा, बट जब उसको नहीं हो पा रहा है कंसीव, तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका वो, along with positiveness there is impatience which is coming कि कब होगा। तो ये an impatient because उसका टाइम लूज होता जा रहा है। सो ये तो इसमें पता चल रहा है कि शी इज नॉट वेरी इमोशनल पर्सन। ये ना प्रैक्टिकली देख रही है हर चीज को, एंड फॉर हर लाइक वर्क इम्पोर्टेंट है, लाइफ में इतने टाइम पे ये हो जाना चाहिए। एक जो माँ बनने का जो इमोशन है ना, वो नहीं दिख रहा है। वॉट शी इज मोर वरीड की टेक्निकल थिंग्स इन लाइफ, she is seeing it through a different angle because motherhood is a very emotional experience. वो इमोशन नहीं दिख रहा है इसमें, इवन दो शी वांट्स अ चाइल्ड, और वो उसको चाहिए, बट वो इम्पेशेंट भी हो रही है उसको लेके कि वक्त रहते हो जाए। मे बी इट इज इनसिक्योरिटी की फ्यूचर में जब तक मैं काम करूं तब तक इसका स्टडीज हो जाए। इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी विच शी इज हैविंग, एंड शी इज एडमिटिंग कि मैं अपना काम पहले करूंगी फिर बच्चे को देखूंगी। तो ये बहुत ऐसे, मतलब शी इज नॉट वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। the remedy which is coming is, I don't know, I mean मेरे को बस ये इतना इवेल्युएशन समझ में आया है कि what kind of person she is, एंड अभी तक हो जाना चाहिए था जैसे शादी के बाद। तो रिचुअलिस्टिक काइंड ऑफ बिहेवियर की भी शादी के बाद बच्चा हो ही जाता है। आई थिंक एक बार पहले भी एक केस में सर ने समझाया था कि इस तरह से थिंकिंग जाती है। तो मेरा मेरा ध्यान टुवर्ड्स आर्सेनिक जा रहा है इसमें। उसने ऐसा नहीं बोला ना, हो शादी होगी तो बच्चा होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला उसने। जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज शी Because started. again there also she gave reason कि एज की वजह से, एज एक रीजन था कि हमने वेट नहीं किया because 35 क्रॉस हो चुका था by the time they got married, तो इसके लिए उन्होंने वेट नहीं किया। She didn't say कि शादी होगी तो बच्चा होना चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ, एंड वो हस्बैंड के वो कैपेबिलिटी, वो डिसीजन मेकिंग पावर से उससे इरिटेट हो जाती हैं। So his decision हेलो हेलो, हाँ बोलिए। मैम, सिमोसोफी क्यों? क्योंकि सिमोसोफी का ईगोइस्टिक होता है ना, जब उसकी प्रोडक्टिविटी रुक जाती है तो फिर उसको परेशानी रहने लग जाती है। तो इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो रुक गई ना, ये जो चाह रही है। ओके। तो पहले उसको लग रहा था कि ये सब चीजें बड़े आराम से हो जाएंगी, मगर नहीं हो पा रही हैं। ऐसे उसने बोला, मुझे लगा था कि बड़े आराम से हो जाएंगे। ऐसे उसने बोला कि हमने मैरिज के बाद वेट नहीं किया बिकॉज हमारा एज था ज्यादा, तो इसके लिए हमने तुरंत ही प्लान कर लिया था बच्चे के लिए, और सब कुछ अच्छे से हो रहा था। उसका 7th मंथ में मिसकैरेज हुआ है, फर्स्ट भी उसको कंसीव हुआ था। तो बोली कि स्टार्टिंग के महीने एकदम स्मूथली गए, और फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड सडनली ऑन दैट डे, ऐसा उसने बोला। और वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो चुप हो गए। ओके तो मैम। ऐसे हम अज्यूम नहीं कर सकते कि उसको ऐसा लग रहा था कि सब स्मूथली जाएगा। उसने ऐसा नहीं बोला कि सब स्मूथली जाएगा, ऐसे लगा।
उसने बोला कि जब भी वो प्रेग्नेंट थी तब सब स्मूथली जा रहा था। Why unfortunate feels? Dr. Lata madam, why you feel unfortunate feels? नहीं, she is affected definitely with that incident, but वो show नहीं कर रही है. That's why she took that pause also, but she again gathered herself together. So what is that? Emotions overpowered by intellect, I don't know. Emotions, again intellect, दो बड़े वर्ड्स है, कैसे यहाँ पे करेंगे उसको अप्लाई? और कोई समझा सबको केस, सबने सुना अच्छे से? हेलो। यस मैम, यस। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैम, मेडिसिन का तो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे समझा है, कॉन्फिडेंट है वो कि वो आगे देख लेगी, जो भी चाइल्ड का होगा, हस्बैंड नहीं करेगा तो भी वो कर लेगी। और दूसरा ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, क्योंकि उसने बोली कि शादी के बाद हमने फॉरेन प्लान किया, क्योंकि मेरी एज 35 हो गई थी, तो ये मुझे ऑब्जेक्टिव लगा उसका। और एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, क्योंकि जब आपने उनसे पूछे कि क्या टेंशन होता है बीच में, कुछ ऐसा था, तो वो बोली थी कि नहीं उतना नहीं होता है, तो उसके हस्बैंड बोला कि नहीं होती है, और फिर उसने स्माइल की थी। Then बस। और तो क्या लग रही है अभी का रेमेडी? समझ में नहीं आ रहा है मैम। हस्बैंड के बारे में क्या लग रहा है? हस्बैंड जेलसेमियम थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि उसे काम का टेंशन है, और उसने बोला भी है कि एम्प्लॉय को निकाल देंगे, और उसको मार्क करके रखे हैं उसके फॉल्ट 3-4 जो भी है। तो उसे डर लगा रहता है, काम का टेंशन भी रहता है, और डिसीजन लेने में भी वो बहुत आगे पीछे करता है, सही से ले नहीं पाता है, तो थोड़ा थोड़ा जेलसेमियम। थोड़ा थोड़ा चलेगा क्या आपको यहाँ पे? नहीं मैम। मैम हस्बैंड तो कैलकेरिया कार्ब लग रहा है। क्यों? एवराइज और फियर जॉब टू लूज हिज क्यूरेटिव। ओके, ओके। क्योंकि उसने आपसे आते के साथ ही कहा कि महंगा शैम्पू मत देना, और उसको ये डर है कि मेरे को भी जॉब से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये साइड टू दिस रूब्रिक फियर टू लूज हिज lucrative जॉब, क्योंकि उसने बोला ना सीधे सीधे कि फियर है कि मतलब कल क्या स्टेट होगी ऑफिस में बोल नहीं सकते, एम्प्लॉइज को काफी जन को निकाल दिया लॉकडाउन में, तो कल किसका नंबर रहेगा वो भी नहीं बोल सकते, और ऑलरेडी मिस्टेक हो चुकी है, उसको कंसीडर किया है, तो वो एक बैक ऑफ द माइंड एसेंशियली वो चलता रहता है। दिस इज राइट, एवराइज ले सकते हैं, बट ये दोनों लेके कैलकेरिया आता है क्या? काफी रेमेडीज आती है मैम पल्सेटिला सीपिया कैलकेरिया कार्ब और स्टेफाइसगेरिया। तो व्हाई नॉट पल्सेटिला पल्सेटिला और स्टेफिसाइडिया, व्हाई कैलकेरिया?
हेलो। हेलो। हाँ सर, व्हाई नॉट पल्सेटिला एंड स्टैफिसाइडिया, व्हाई ओनली कैलकेरिया? ये Because it's एक्चुअली मैम slowness. बोलिए सर। तो हर काम स्लोली करते हैं ना, इसके वास्ते कैलकुलेट कर दिया मैंने। काम नहीं स्लोली कर रहे हैं, वापस आप ये कर रहे हैं, उसमें गलती हो रही है। सिर्फ वो डिसीजन स्लोली लेते हैं। उसने बोला क्या सारे काम स्लो करता है? अगर सारे काम स्लो करता है, वो उसने क्या बोला, अगर बच्चा होता है, बच्चा रोएगा तो ही विल बी द फर्स्ट पर्सन जो अपना काम छोड़ के पहले बच्चे के पास जाएगा। उसने ऐसा नहीं बोला है कि वो हर काम स्लो करता है। उसने बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि वो डिसीजन लेने में बहुत वक्त लगाता है। बाकी उसने नहीं बोला कि वो सारे काम स्लो करता है। डिसीजन लेने में वक्त लगाता है, तो टेकिंग डिसीजन। हेलो मैम, वो थोड़ी जिस तरह से हस्बैंड से बात कर रही थी कि तुम भी यहाँ बैठो और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है, अगर डॉक्टर को इम्पोर्टेंट ये लगता है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा डिक्टेटोरियल भी है वो, या थोड़ी डोमिनेटिंग है रिलेशनशिप में दोनों में। वेरी गुड। और दूसरा वो 35 इयर्स उसने जो कैलकुलेट किया है, शायद ये भी है कि ये एज में उसने एक्सपेक्ट किया था कि होना है प्रेग्नेंट, और वो मिसकैरेज हो गया, तो और अभी नहीं वापस प्रेग्नेंट हो पा रही है, तो एंजाइटी इफ टाइम इज सेट, शायद ये रूब्रिक लग सकता है। आई डोंट नो दैट इज इम्पोर्टेंट, बट वो कौन सा रूब्रिक थे आई एम कंफ्यूज, बट ये लग रहा था ज्यादा एप्ट उसके लिए, अगर प्रोग्रामिंग नहीं, एवरीथिंग हमें पता नहीं है, तो एंजाइटी है क्या? एंजाइटी है। अगेन एवरी वर्ड ऑफ रूब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ नहीं है एक्चुअली। रूब्रिक क्या है? एंजाइटी हाँ। व्हेन टाइम इज सेट। आधा आधा मैच हुआ तो नहीं चलेगा ना हमको, वैसा हम करेक्ट। यस मैम, टाइम को लेकर बोल रही हूँ लेकिन सूझ नहीं रहा है कुछ। जी, आपकी आवाज मैडम कम आ रही है। नहीं, टाइम से लेकर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए रूब्रिक ज्यादा पता नहीं है, तो जिसमें टाइम है उस रूब्रिक को हम क्लिंग कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। हाँ, बट दैट कम्स अंडर एंजाइटी ना, तो एंजाइटी है यहाँ पे नहीं है। किसी ने इम्पेशंस बोला था, आई डोंट रिमेम्बर नेम। यस मैम, श्वेता, इम्पेशेंस। डॉक्टर श्वेता ने बोला था, राइट। सो इम्पेशंस इज वेरी करेक्ट रूब्रिक हियर। एंड मैम वन मोर थिंग, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का शायद कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर के सामने आके कम्युनिकेट कर रही कि तुम्हें भी पता होना चाहिए कि, आई थिंक सो कि उसने ये बात उसको नहीं बताई है कि ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बॉदर करती है तुम्हारे बारे में। डेफिनेटली शी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, बट या तो वो वहां तक कन्वे नहीं हो पा रहा है। एवरी सेकेंड डे दे फाइट ना, तो उसमें तो आ ही गया कि उसको वो बात खटकती है उसकी। और कम्युनिकेशन उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आई नो देम। एंड मैम वन मोर थिंग, वो बोली कि मुझे पता है मैं मैनेज कर लूंगी, जब होगा तब आई विल बी एबल टू डू, वो उसमें कॉन्फिडेंट लग रही है। आई डोंट नो वेदर इट इज हर डिल्यूजन वेल्थ और मतलब, बट शी इज अवेयर कि मैं कर लूंगी, इवन दो वो उसके लिए कंसर्न है, बट शी इज क्वाइट श्योर कि आई विल बी एबल टू मैनेज द फेज व्हेन इट कम्स। But she will be able to manage finances because she is earning more than him. But for rest, what she said, of course, with husband support side, it is there. मतलब she needs husband support ना, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज वो खुद करे। इम्पेशेंस वाला आपने बहुत सही बोला था, लेकिन इम्पेशेंस के साथ क्या आएगा, सब रूब्रिक क्या आएगा? इसका थ्रू आउट चल रहा है ना इम्पेशेंस, मतलब इमीडिएटली उन्होंने मैरिज के बाद कंसीव करने का प्लान किया,
फिर अभी जब उनको कंसीव हो गया 7th मंथ में उसका मिस कैरेज हो गया, इस लेडी का बीपी बढ़ गया था। ठीक है, फिर जब भी वो डॉक्टर के पास गए, मतलब उसको हाई बीपी था प्रेगनेंसी। फिर 7th मंथ में डॉक्टर ने बोला कि मतलब फीटल हार्ट इज नॉट वर्किंग एंड इसके लिए उनको वो मतलब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सके। और उसके बाद डॉक्टर ने उनको बोला था कि टू वेट फॉर सम टाइम, तुरंत चांस नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी इसने 3 मंथ्स हो गए, तुरंत फिर चालू। फिर बोली इतना महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, अभी 3 महीने बाद तो 1 साल हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। फिर बोली उसमें से भी ओवरकम किया था जब उस वक्त मिसकैरेज के टाइम पे। उसके बाद भी बोली कि बाद में ऐसा पॉजिटिवली ऐसा लग रहा था कि अब होगा अब होगा अब होगा। मतलब कितना घाई है ना, उसको होना चाहिए। तो इम्पेशेंस इज वेरी लाइकली, मतलब आई टुक इम्पेशेंस। उसका सब रूब्रिक बता। Slowly everything goes to impatience. Slowly everything goes to कैसे? उसको स्लो लग रहा है ना मैम, कंसीव नहीं हो पा रहा है, एंड हस्बैंड की तरफ से भी इम्पेशेंस लग रहा है कि फटाफट डिसीजन क्यों नहीं लेता है। वहां पे भी उसको स्पीड, स्लो स्पीड से प्रॉब्लम है, सब जल्दी हो जाए, ये डिसीजन फास्ट ले ले, मैं कंसीव जल्दी हो जाऊं। Think more, think very simple. Impatience about children. Impatience always. Impatience always. कैसे? लेकिन चिल्ड्रन के बारे में क्या सिर्फ इम्पेशेंस, जैसे अभी मैडम ने बताया, हस्बैंड के का भी है ना, डिसीजन फटाफट लेना चाहिए, स्लोली नहीं होगा। बापू सरकार सर क्या बोले सर? सॉरी मैंने सुना नहीं। Impatience always. Impatience? Always. 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 अभी तो ना always है कि नहीं, उतना तो डिटेल में सब चीजें नहीं पूछ। अभी सारे सब रूब्रिक मत बोलिए। एक एक करके सोचो थोड़ा, क्या होगा, ये स्टेट क्या है, स्टेट को समझो, ये स्टेट को समझो। अगर आप इसके लिए मैंने दोनों का साथ में नरेट किया था, नहीं तो मैं एक का करके उसका डिस्क्लोज करके बाद में भी कर सकते थे। दोनों का साथ में इसके लिए नरेट किया कि समझो वो स्टेट को। मैंने पहले भी बोला था उसका, उनका आईपीआर समझने के लिए मैं दोनों केसेस साथ में बता रही हूँ। इनफर्टिलिटी का केस है, आईपीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Wife is dominant. Sorry? Wife is dominant, dictatorial. Yes, she is a dominating figure. देखो मतलब हम डोमिनेटिंग रूब्रिक नहीं लेंगे, बट टू अंडरस्टैंड देयर रिलेशन। मोस्टली क्या होता है एक कपल में, हस्बैंड वाइफ के बीच, हस्बैंड इज एक्सपेक्टेड टू बी अ डोमिनेटिंग फिगर। Ma'am, impatience means after. क्या? Impatience means after. मेंसेस आफ्टर? Yes, ma'am. ऐसा है क्या सिर्फ मेंसेस आफ्टर ही? अभी कुछ भी फेंको मत, थोड़ा सोच के बोलो। सर क्या बोलते हैं हमेशा कि 4 रूब्रिक अंदर फिर 1 बाहर, या 4 वर्ड्स अंदर फिर 1 बाहर। और एक चीज बताना रहेगी वो हस्बैंड के बारे में उसके, जब वो मुझे स्टार्ट किया ना, तो ही वाज लुकिंग इनटू हिज फोन और वो मेरे से बात कर रहा था। बाद में भी वो बीच में मेरे पास देख रहा था, फिर यहाँ वहाँ या फोन में देख के वो मेरे से बात कर रहा था। और उसका स्माइल भी एकदम ऐसा इस तरीके का था।
आई कैन नॉट इनएक्ट बट कोशिश कर रही हूँ। यस, इवेटिंग लुक है। चलो, किसी को बोलना है या डिस्क्लोज करना है? कोई बोलना चाहता है? और इम्पेशंस, कम ऑन, सिचुएशन को समझो, स्टेट को समझो। इम्पेशंस वर्क फॉर क्या है? कुछ भी मत बोलो प्लीज। वर्क के लिए कहाँ से आ गया? पूरा सब कुछ जोड़ लो ना, फिर आपको क्या एक वर्ड मिलेगा जो सब चीजें फिट करेगा। वर्क हो, उनका पर्सनल लाइफ हो, बच्चे के लिए हो, जो भी हो, डिसीजन मेकिंग हो, कुछ भी हो। Everything goes too slow. क्या? आई थिंक डिस्क्लोज कर लेते हैं प्रणीता। हाँ, वही डिस्क्लोज करते हैं। अभी आप लोग बहुत एकदम निशाना मार रहे किधर राइट आएगा। सो आई टुक सिंपल इम्पेशंस हीट विथ। अभी हीट कैसे समझेंगे यहाँ पे? इसकी ये स्टेट हीट वाली नहीं रहती। हीट के अपोजिट चिल होता है। चिल में इंसान सिकुड़ जाता है। हीट में एक एक्साइटमेंट रहती है। हीट इन्वॉल्व्स एंगर, एक्साइटमेंट, मतलब एकदम हम बोलते हैं ना, जैसे मराठी में हम लोग बोलते हैं वातावरण तापले, गर्म हो गया वातावरण, ऐसा। तो या फिर हम लोग बोलते हैं कि डोंट गेट इनटू हीटेड आर्ग्यूमेंट। मतलब वहां पे एक हीट क्या करती है? हीट इंसान को तकलीफ देती है, राइट? समझ रहे हैं आपको? सो ये जो स्टेट मुझे लगी उसकी, वो हीट वाली लगी कि इतना इम्पेशंस कब होगा, कब होगा, कब होगा। ठीक है, तो आई टुक इम्पेशंस हीट विथ एम्बैरेसमेंट। यस, उसमें था एम्बैरेसमेंट। और एक उसने जो, अभी मैंने उसको सवाल पूछा कि क्या लगता है, तो उसने कहा किया, तो दिस इज लाइक कि कब ऐसा इंसान करता है जब उसको कि अरे क्या पूछ रहे हैं, मतलब जवाब नहीं देने का होता है ना। हम लोग कब करते हैं ऐसा, अरे क्या पूछ रहे हैं, ऐसा है ना, ऐसे मन में ही बोलते हैं ना कि क्या पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं। तो आंसरिंग अवर्जन टू आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है। और यहाँ की वो बोल रही है कि कब होगा, कैसे होगा, बैक ऑफ द माइंड वही सोचती रहती हूँ, कब होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो एंजाइटी डार्क। और वो चीज उसने बोली कि हम दोनों भी 35 प्लस हो गए हैं। जब तक हमारा है ना बच्चे का एजुकेशन है, तब तक हमें क्या हम लोग जॉब पे होने चाहिए। हमारे पास ऐसा तो प्रैक्टिकल सिनारियो कुछ है नहीं कि वी हैव सो मच ऑफ प्रॉपर्टी और फिर हम लोग उसके ऊपर सरवाइव कर लेंगे। तो ये जो बोल रही है ना, उसमें है ना बात, ये वो रीजनिंग कर रही है। तो जैसे सर हमेशा बोलते हैं, मैन इज एंडोव्ड विथ पावर ऑफ रीजनिंग। सो दिस इज रीजन पावर इंक्रीज। ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल से भी थोड़ा आगे है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल सिंपल, वहां पे एक ऑब्जेक्टिव रहता है, कुछ मोटिव रहता है, उसके लिए रीजनिंग करते हैं। मतलब वो लेमैन का थिंकिंग होता है कि अरे ये ऐसा होना चाहिए। बट एक रीजन पावर इंक्रीज वाला बंदा इंटेलेक्चुअल होगा। वो अपना वो इंटेलिजेंस लगा के इंटेलेक्चुअल बंदा ऐसे बात करेगा। ठीक है। तो ये सब जोड़ के क्या आता है रेमेडी? मैम पल्सेटिला। यस, सो दिस इज सिंपल पल्सेटिला। अगर हम लोग इसको रेट्रोस्पेक्टिवली समझेंगे, तो जब भी उसने एंटर किया तो उसने क्या बोला कि मतलब एक ही चीज बतानी है, वी हैव बीन ट्राइंग सिंस लॉन्ग बट नो लक। तो कि सब जगह घूम रही है, गायनेक के पास भी और किधर भी लिया होगा ट्रीटमेंट, बट नो लक। एक बार
हुआ, बट वहां पे भी मिसकैरेज हुआ। तो शी इज ट्राइंग हर लक, कहाँ पे जा रही हूँ तो वहां पे लक होता है। तो मेरे पास भी वो वैसे ही आए हैं, ठीक है ना, कि पहले उसके हस्बैंड की बात हुई थी मेरे से, फिर वो उसके बाद भी बहुत सोच के 1-2 महीने बाद वो आए कि चलो अभी जाते हैं, वो इमीडिएटली वो नहीं आए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑफ कोर्स आई डिड नॉट टेक दिस रूबरी, ये गैम्बलिंग भी हो सकता है कि शी इज ट्राइंग हर लक, कहाँ पे भी वो इसके लिए शी इज गोइंग। और दूसरी चीज, ये कोई भी डॉक्टर के पास ज्यादा टिक नहीं रही है, देयर बी इम्पेशेंस, अरे 2 महीना 3 महीना ट्रीटमेंट लिया, नहीं हो रहा है। दूसरा डॉक्टर मेरे पास भी, इन्होंने सिर्फ हार्डली 2 महीना ट्रीटमेंट लिया होगा, 3 से 4 फॉलोअप के अंदर उन लोग गायब हो गए, ठीक है। फिर कुछ महीने गए और जैसे उसका हस्बैंड फ्रेंड सर्कल में है, तो आई रियली वांटेड टू गिव देम रिजल्ट। ऑफ कोर्स हमको हर पेशेंट के लिए लगता है कि उनको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मेरा कैसा है, मैं बहुत रेमेडीज, मतलब इसके बाद ये ऐसा वो गैम्बल नहीं करती, मतलब वो पसंद नहीं है, जैसे सर से सिखाई ये चीज की पेशेंट पे वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो जहाँ पे ऐसा लगता है कि अरे वो नहीं हो रहा है, तो अक्सर मैं सर से कंसल्ट करवाती हूँ, प्रॉपर उनका अपॉइंटमेंट लेके, उनका कंसल्टेशन चार्जेस उनसे लेके सर का। तो मेरे दिमाग में वो था कि अभी मैं सोचती हूँ, क्योंकि आई वॉज प्रीटी श्योर अबाउट देयर प्रिस्क्रिप्शन, बट स्टिल आई वॉज फीलिंग कि उन्होंने क्यों ट्रीटमेंट छोड़ा। और उसके बीच में भी हमारी ऐसी बात हुई है, बट फिर भी ना उन्होंने कुछ बोला, मैंने भी कुछ नहीं पूछा। और जब मैंने सामने से पूछा, तब उसके हस्बैंड ने बोला कि वी आर एक्सपेक्टिंग, और दैट वाज हर 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो मतलब जब भी ट्रीटमेंट ले रहे थे, फिर नेक्स्ट मंथ में ही उनको कंसीव हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। उसके बाद वो नहीं आया, जब मैंने पूछा तब उसने बोला कि वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो ये एक चीज है, ये अनग्रेटफुल वाला एस्पेक्ट है। दूसरा, उसने क्या बोला था ना कि मतलब टाइम में बच्चा हो जाएगा तो बच्चा मेरे साथ, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, ये उसने बोला था जब स्टार्टिंग में वो बोल रही थी। और बाद में जब भी मैं उसको पूछ रही थी कि तुझे बच्चा क्यों चाहिए, तभी उसने क्या बोला, इट इज वी वांट, इट इज नॉट कि आई वांट। मतलब तभी वो बोलती कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे चाहिए, हम दोनों का रहेगा ना वो, हमारा बच्चा है, मतलब हमें चाहिए। बट जब वहां पे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात थी, फाइनेंशियल वो इसकी बात थी, तो बोली कि आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ माय किड्स वेरी वेल, है ना। तभी बोली कि मेरे साथ मेरा बच्चा बड़ा होगा, तो वहां पे मेरा बच्चा, यहाँ पे हमारा बच्चा। तो ये एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में मुझे इसका हिपोक्रेसी जैसा लगा कि अरे जब चाहिए खुद का, नहीं तो फिर हमारा ऐसा है, जहाँ पे बड़ी बात करनी है कि आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ माय चिल्ड्रन, उस तरीके से। सो आई गेव हर कंसिडर 6 स्टैट डोज, मतलब 3 डोज जैसे हम आधे घंटे में देते हैं बस, एंड शी कंसीव। अभी इसका समझो, इसको हाई ब्लड प्रेशर था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से इसका अबॉर्ट हुआ था, एबनॉर्मल पैथोलॉजी डेवलप हुई थी, बच्चे का ना हार्ट काम नहीं कर रहा था, इसका भी बीपी बढ़ा हुआ था, फीटस में एबनॉर्मल पैथोलॉजी डेवलप हुई थी। बट व्हाट मैजिक अ डोज ऑफ पल्सेटिला कैन, मतलब इसका सेकेंड प्रेगनेंसी में उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई है, एंड दे आर ब्लेस्ड विथ ट्विन्स, अ बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी शी वाज फाइन, बीपी कभी ऐसा गया होगा, मतलब बाद में जब भी मुझे 7 मंथ के बाद पता चलने के बाद,
कभी ऐसी बात हुई तो एक दो बार बोला कि मतलब बीपी नॉर्मल रहता था, बट उसके लिए उन लोग बार बार बीपी चेक करते थे क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था। तो Pulsatilla can do, homeopathy can do such a wonder. बहुत सिंपल है ना, इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। हमने बहुत सिंपल सोच के सिंपल उसको रेमेडी दी। तो पल्सेटिला कैसी होती है ना, फैमिली ओरिएंटेड रहती है। पल्सेटिला हस्बैंड को लेके चलेगी, वो शी नोज हाउ टू हैंडल हस्बैंड। इसके लिए पल्सेटिला मैनिपुलेटिव नहीं है, वो बहुत स्वीटली मैनिपुलेट करते हैं। मतलब इसने कैसे किया, हस्बैंड की गलती भी बताई उसके पहले, आई एम सॉरी बट he can't take decisions quickly, he takes long time to take decision। और उसको कवर अप भी उसने किया बाद में बोल के कि हम दोनों में अगर कोई बेटर पेरेंट बन सकता है तो दैट विल बी माय हस्बैंड। मतलब वो उसकी गलतियां भी बता रही है उसके सामने, डॉक्टर के सामने, बट वो कुछ अच्छी बातें बोल के उसको कवर भी कर रही है। मतलब वो हस्बैंड को साथ लेके चलेगी, बुरा नहीं बनेगी, वो उसको बता भी रही है बट उसको कवर अप भी कर रही है। तो एक जगह पे उसने बताया कि तू ऐसा है, बट दूसरी जगह पे उसको कवर अप भी कर लिया कि अरे ही विल बी द बेस्ट पेरेंट अमंगस्ट अस। वो हस्बैंड भी खुश। तो पल्सेटिला की ये क्वालिटी होती है पल्सेटिला की, ठीक है। सो आई गेव हर पल्सेटिला 6। हस्बैंड का एम्बैरेसमेंट है, यस। दूसरा जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, फियर टू लूज हिज लुक्रेटिव जॉब, और उसका इवेडिंग लुक है, और जो उसका स्माइल था टिपिकलिज्म, ये उसका एफिमिनेट वाला था। अगर आप केस को भी समझोगे तो शी वॉज डोमिनेंट, शी वॉज डिक्टेटोरियल, जो विच इज एक्सपेक्टेड बाय अ मेल पार्टनर कि वो डोमिनेंट रहेगा, बट वहां पे वो है, मतलब दे आर स्टेइंग इन अ हाउस विच इज ओन्ड बाय हर। तो इसका क्या फिर, ये तो ऐसा 1 मिनट बन के ही रहेगा ना, क्योंकि इसका इनकम इतना नहीं है, वाइफ इज अर्निंग मोर। वाइफ बोल रही है कि मैं बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ, फाइनेंशियली शी इज मतलब मोर स्टेबल देन हिम। तो ये वैसे भी अगर हम सोचे तो जैसे सर ने बहुत अच्छे से हमें बताया है, सिखाया है कि इस केस में आई फेल्ट he is she and she is he। वहां पे फीमेल इज फीमेल का जो क्वालिटी है वो मेल वाला है, और मेल का है वो फीमेल जैसा, राइट। आप कन्विंस्ड हो ये बात से, आपको लगा ये चीज है इसमें? यस मैम। हेलो, यस, ठीक है। और अगेन अनग्रेटफुल दोनों का भी रूब्रिक आएगा, दोनों ने भी नहीं बताया। और जब 7th मंथ में जब भी इसने मुझे बताया उसके हस्बैंड ने कि वी आर एक्सपेक्टिंग, तब उसने मुझे आगे बोला भी कि प्लीज डू नॉट शेयर दिस विद एनीवन, इवन इन आवर फ्रेंड सर्कल, ठीक है। दूसरी चीज, जब मतलब डिलीवरी हुई तो इसका मैसेज आया कि वी आर ब्लेस्ड विथ ट्विंस, अ बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल। तो आई वाज सो सरप्राइज कि इससे बात हुई थी, इसने बोला कंसीव किया है, बट ऑफ कोर्स ट्विंस है तो पहले पता होगा ना, तो उसने ये चीज नहीं बताई। तो जब मैंने इसको कांग्रेस करने के लिए कॉल किया, आई सेड ट्विंस था करके, तो बोले कि हाँ, only doctor and we two were knowing about this, husband wife and doctor। बोले कि मेरे घर वाले भी सरप्राइज हो गए कि ट्विंस कैसे हो गए, किसी को नहीं बताया, ना घर वालों को बताया। तो इतना सिक्रेटिव। आई गेव हिम स्टैफिसाइडिया 30, बट ये उसका सिक्रेटिव और अनग्रेटफुल तो बाद में पता चला, लेकिन पहले ही उसका स्टैफिसाइडिया था। तो आई वाज लाइक कि अरे ये तो बराबर ही हिट कर गया उसको रेमेडी, इसके लिए तो कंसीव भी हो गए, और इतनी बड़ी पैथोलॉजी अपने एक डोज के साथ करेक्ट हो सकती है एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन के साथ, और उसका डिलीवरी भी हो गया, सब अच्छे से हो गया।
सो इसमें और एक चीज मुझे बतानी है, जो 4th लेक्चर में इनफर्टिलिटी का केस हमने डिस्कस किया था, वहां पे भी अगेन अ फीमेल वाज पल्सेटिला, बट शी वाज अ ग्रेटफुल पल्सेटिला। वो लेडी ने इतना इतना ग्रेटिट्यूड है वो लेडी में कि उसने मुझे मैसेज करके कॉल करके, थैंक यू मैडम, आपके वजह से हम लोग माँ बाप बन गए। और इमीडिएटली जब जब भी उसका यूपीटी पॉजिटिव आया, इमीडिएटली उसने मुझे फोन किया, मैसेज फोटो सेंड किया कि मेरा पीरियड्स मिस हो गया है और ये है। डिलीवरी होने के बाद इमीडिएटली हस्बैंड वाइफ और बच्चे को लेके मुझे फोटो सेंड किए। उसके बाद भी कितनी बार उसने ग्रेटिट्यूड पे किया, और उसने इतने पेशेंट्स भेजे मेरे पास इनफर्टिलिटी के लिए, तो भेजे ही, अदरवाइज भी भेजे, लेकिन उसके नजर में कोई भी इनफर्टिलिटी का कोई भी आता है, उसके हस्बैंड के कंपनी के वगैरह भी जो है, उसने काफी पेशेंट भेजे। तो एक जो हमारे दिमाग में एक फिक्स आइडिया होती है ना, ये रेमेडी ऐसे ही रहेगी, वो रेमेडी ऐसे ही रहेगी। तो ये जैसे सर हमें सिखाते हैं कि हर रेमेडी का अलग अलग वर्जन अलग रहता है, उसका एस्पेक्ट अलग अलग एस्पेक्ट रहता है, हर सिचुएशन में वो रेमेडी अलग तरीके से बिहेव कर सकती है। सो इट इज नॉट कि पल्सेटिला अनग्रेटफुल ही रहेगी, पल्सेटिला ग्रेटफुल भी हो सकती है। तो ये इसके लिए मैंने पर्पसली आज वापस इनफर्टिलिटी चुना, क्योंकि मुझे वो एक आपको बताना था, एक ही रेमेडी का अलग अलग एस्पेक्ट, मतलब वो पल्सेटिला कैसी थी और ये पल्सेटिला कैसी है, और ये जो है ही इज शी एंड शी इज ही वाला एस्पेक्ट। मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल टू सर। अगर माइंड में नहीं आती थी तो ये सारी चीजें, इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं सीखने मिलता था, कभी नहीं। तो ये जो विजन दिया है, ये जो सोचने का ये सर ने दिया है हमें, जो नजरिया दिया है पेशेंट के पास देखने का, वो एम्पैथी कैसे समझने का, ये सिर्फ और सिर्फ सर दे सकते हैं। मैंने आई हैव नॉट सीन अ मेंटर लाइक हिम, जो इतना डीप में जाके सोच सकते हैं। और मतलब जो हम कभी भी, मैं नहीं सोचती थी, अगर ये मैं माइंड में नहीं होती और इन लोग मेरे पास आते थे, कभी भी नहीं आता था दिमाग में कि अरे ये तो फीमेल तो मेल का पार्ट प्ले कर रही है और मेल ऐसा फीमेल बन गया। एक फेमिनेट रूब्रिक तो पता भी नहीं था कि कैसे लेने का, और पेशेंट में भी लेने का, वो भी इम्पोर्टेंट है। सो I am really grateful to sir. Thank you so much, sir, for your wonderful teaching and always having faith in us. And thank you so much again for giving me this opportunity. So thank you everyone for joining. मैडम, हस्बैंड के लिए क्या रूब्रिक्स लिया? क्या हस्बैंड के लिए रूब्रिक्स क्या लिया आपने? हस्बैंड के लिए एफिमिनेट लिया था, एम्बैरेसमेंट है, fear to lose his lucrative job, evading look है, और बाद में रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में जो बाद में उसका पता चला, अनग्रेटफुल एंड सीक्रेटिव। ओके, थैंक यू मैम। मैम इस केस में आपने जो मैडम ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। हो गए डाउट्स सबके? और किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ पूछना है? यस मैम, वो जो आपने लुक में स्टाफिसाइडरिया नहीं है दिया ना, इस तरीके का नजरिया अगर आपको लाना है आपके प्रैक्टिस में, अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस चेंज हो जाए, आई टेल यू, माइंड में आने के बाद, सर से सीखने के बाद 360 डिग्री प्रैक्टिस चेंज हो गया है मेरा। मैंने ये काफी जन को बोला है, जब भी कोर्स के लिए भी कॉल करते हैं, ऐसे भी पहले लेक्चर में भी बोला है। मतलब यू विल सी एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है अपनी प्रैक्टिस को आप एक्सपीरियंस करके। तो दिस इज, मतलब सर की टीचिंग तो अमेजिंग है, उसमें कुछ भी डाउट नहीं है। आज तो सर बीमार है, नहीं तो आज और कुछ सर ने बहुत अच्छे से बता दिया होता इस लेक्चर को, और भी मतलब सर ने बहुत ही खूबसूरत बना दिया होता। हर बार सर कोई ना कोई टिप देते हैं।
किसी ने सवाल पूछा है इफेमिनेट क्यों लिया आपने? somebody अच्छा, is asking why you took effeminate. Yeah, एफिमिनेट क्योंकि उसका जो स्माइल था ना एकदम ऐसा, मैं इनैक्ट नहीं कर पाती, लेकिन जो फेमिनाइन स्माइल होता है उसका जो था, और जैसे कि वो एक फीमेल वाली पोजीशन पे अभी आ गया है ना, सब उसकी डोमिनेटिंग उसकी वाइफ है। अगर हम उनके आईपीआर को समझे या उनका पूरा स्टेट को समझे, तो शी इज प्लेइंग रोल ऑफ she is playing his role and he is playing her role. That is why I said कि he is she and she is he. तो जो मेल पार्टनर से एक्सपेक्टेड होता है यूजुअली, that role female is playing here and male is playing female's role. That is why I but took that's a 30 minutes. that is the retrospective rubric, right? Or you took it for prescription? Because of his smile and expression I took it, Okay. but retrospectively also I understood, मतलब वो confirm हो गया. Okay, great. Pranita, Dr. Pranita is very sensitive about effeminate males. क्या? Dr. Pranita is very, very sensitive about this. She catches the effeminate very fast. Very, very. She has rejected many boys because they were effeminate. Yeah. Hello, Mansi. Very nice, प्रणीता बेटा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने। ये मैस्कुलाइन साइड वाला जो है पल्सटला, मैं आपको बता दूं, प्रणीता अभी शायद लास्ट टाइम मिली थी बेटा, अपन तकी के एडमिशन को गए थे प्रणीता, यू रिमेंबर दैट गर्ल वी मेट आफ्टर वी हैड फूड, तकी के एडमिशन को अपन गए थे, तो वी मेट दैट गर्ल, remember that girl with boycott and shirt and all, that girl is running her own she's a gym instructor. Okay, she has no father, no brother, she has two sisters who are married. She married one sister of hers younger than her. Okay, so there were three sisters, one was married, another ये लड़की ने कराया, इनका गांव में घर भी उसने बनाया, एंड आप उसके पास देख के आपको लगेगा ही नहीं कि ये लड़की, मतलब वो पहली बार तो मैं उसको लाइक आई हैड टेकन द रूब्रिक मैनिश वुमन बोल के ऐसा लिया था मैं, and I had given her that reward, but then over the period of time when she came back again, and then I retrospectively when I thought about the case and I gave her, और डर के मैं पल्सटला उसको दिया था पहली बार, ठीक है, and after that that girl is doing so well, उसके बाद में मुझे एक बार सिर्फ उसको 30 देना पड़ा, लेकिन वो लड़की भी पल्सटला 6 पर ही है माशाल्लाह अभी तक, and very independent girl living in Bombay now, though from Nasik, living in Bombay. She's a gym instructor in BKC Bandakurla complex में बहुत बड़े जिम में है, pitching 2-3 lakhs rupees salary per month with the grace of God. God bless her. So that girl has taught me this rubric, I mean this part of पल्सटला. उसके बाद में तो मैं ये लेता नहीं हूँ masculine girl and all that. I very rarely I take that rubric. बट एक चीज है अगर आप देखोगे पल्सटला में, वो है सेल्फलेस, और दूसरा ये है केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, मतलब उसके दिमाग में केयरफुल, फुल इज फुल, ओके, मतलब घड़ा भरा हुआ है, उसके अंदर कोई और नहीं जा सकता, फुल इज फुल, अपन बोलते ना थिएटर इज फुल, टिकट्स फुल, हॉल इज फुल, अपना कभी कभी जूम मीटिंग फुल हो जाता है, नया एडमिशन किसी नए को नहीं मिलता, ग्लास इज फुल, है ना, द बॉटल इज फुल, तो केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स, तो उसका डोमेस्टिक की उसको चिंता रहती है, वो डोमेस्टिक के बारे में केयर करती रहती है बहुत ज्यादा, है ना। तो अगर आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे, केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स एंड सेल्फलेस, तो पल्सटला आती है। तो वहां पर अपने को ये सो कॉल्ड अपन जो फंस जाते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली वगैरह, उसके अंदर जो अटक जाते हैं ना, मतलब मेरे को जो तजुर्बा मिला है कि पल्सटला मतलब पूरे गली की माँ होती है, अगर वो स्लम में रहनी है तो पूरे गली की माँ रहेगी, क्योंकि उसको इतना अच्छा वो अपना आईपीआर क्रिएट कर लेती है, कभी भी बुला किसी की, मतलब उनके यहाँ पे किसी का भी जरूरत पड़ता है तो सारी गली उनके लिए दौड़ के आएगी, ये लेडी भी सबको मदद के लिए जाएगी, मतलब वो महाराष्ट्र में आपको कुरडाई बोलते हैं हम लोग उसको,
आप लोग क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। पापड़ तो आप लोगों को पता है, गर्मियों के दिन में महाराष्ट्र में गेहूं के गेहूं को उबाल के उसके पापड़ बनाते हैं, चावल के पापड़ बनाते हैं, और वो कुरडाई बनाते हैं, गोल गोल ऐसी चीज होती है, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, शायद से नॉर्थ में नहीं बनती। वो होती है जो हम लोग महाराष्ट्र में, मेहमान अगर आता है तो हमारे इधर होता है कि खास करके गांव का जो हमारा है, आई बिलोंग टू अ विलेज, आई फ्रॉम फार्मर्स एंड फार्मर्स फैमिली। तो हमारे इधर जो होता है, हम लोग आम का रस, आम रस भी, और उसके साथ में कुरडाई, भजिया, पापड़, ये हमारा मतलब सबसे भारी, ये हमारा पंच पकवान है। ये नॉट, तो वो उसके अंदर मतलब, तो वो मेरे पास में कई पेशेंट है जो कि मतलब पूरन पोली बन जाए तो लेकर आएंगे, वो प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज में भी पलसटला है ना। वो आप थोड़ा सा पलसटला को आप समझो, बहुत मजा आएगा। और ये मन में फिक्स मत करो चीजों को ज्यादा, और रूब्रिक इस्तेमाल करो, use the rubrics wisely, don't hunt for the rubrics like I told yesterday in the lecture. You need to apply the rubrics, not find the rubric. Mind method is not hunting for mental symptoms, no, not at all, please. हम लोग फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म ये रूब्रिक कितनी बार यूज करते हैं, so many times I use that rubric. फैमिली sleep, falling easily, ये रूब्रिक भी आप कितने, but there are so many rubrics which I use. Second thing about Saphisagre which I wanted to tell here, I don't know, staff is there in Phoenix. I do not know. रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्जेंट में है क्या, स्टेमिना देखिए। लेकिन अगर आपको कोई भी पेशेंट अर्जेंट नाइट्रियम लग रहा है कि जो बिस्तर तोड़ रहा है, आराम से नहीं खा रहा है मुफ्त की, और अगर आपका अर्जेंटम फेल हो रहा है, तो आप जरूर फास्फोरस और स्टेबिसाइग्रे के बारे में भी सोचिए, क्योंकि स्टेबिसाइग्रे भी बहुत चालू होते हैं, तो शायद से मैनिपुलेटिव में तो होगा। आई हैव सीन स्टाफ, वो मस्त पैसे वाली लड़की से भी शादी करने वाले स्टाफ में बहुत बार देखा हूँ, अच्छी फैमिली सो कॉल्ड, जिसके पास पैसा रेपुटेशन हो रहा है, तो उनसे भी शादी करने वाले स्टाफ मैंने बहुत देखा हूँ, और उधर से उधर की हेल्प पे जीते, और ये डिग्निफाइड तरीके से अपना जिएगा कि मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा, वाइफ मदद मांगेगी। टेकिंग डिसीजन स्लो मतलब क्या है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेपिसग्रिया। somebody should have, क्या नहीं, हाँ, तो ये चीज आप समझिए, it takes the decision slow, मतलब initiative even in the man and woman relationship. I was thinking कि what this lady is trying to indicate, whether she's trying to say that amongst us two, I have to take the initiative and he doesn't take the initiative. अभी भी वो excuses दे रहा था कि मेरा तो काम का मुझको 2-3 बार ये हो गया है, नहीं कुछ उसको नोटिस वोटिस मिली होगी या जो भी होगा, तो मुझे कभी भी काम से निकाल सकते हैं। मतलब भाई लोग ये दोनों भी एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप समझो। लेकिन यहाँ पर पल्सटला जो होती है ना, मॉरल्स वाली होती है, घरंदा होती है ना, कि वो अपने मॉरल्स में बंधी है कि नहीं पति है मेरा, तो वो तो आगे लेकर ही जाएगी, सेल्फलेस है। पल्सटला भी थोड़ी सी खुली होती है, पल्सटला को पागल बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जितना आसान सेपिया को आप आसानी से ये कर सकते हो, मैग्नेटाइज कर सकते हो, लैक्टिस को कर सकते हो, फास्फोरस भी मैग्नेटाइज हो जाता है आसानी से, लेकिन एक्यूरेट हो जाता है। पल्सटला भी बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो जाती है। पल्सटला कैन कॉम्प्रोमाइज very well, but with reason power increase. She has reasons for every action she's doing. Please remember, Pulsatla, I think Pulsatla is there in intellectual also. Pulsatla को आप कम में मत आंकना, वो टच मी नॉट नहीं है, प्लीज। बार बार टच मी नॉट करके इंसान सख्त बन जाता है, ये भी आप याद रखिए। कोई सेंसिटिव बंदा हो तो बार बार अगर उसको जख्म लग जाए, तो उसका जख्म, तो वो जो होता है ना, वहां पर ये बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, गत्ता पड़ जाता है उसको, अपना मराठी व्हाट इज इट कॉल्ड, सख्त हो जाती है जगह बार बार जख्म लगने के बाद। तो आप पल्सटला को एकदम ही वो वाली मत समझिए, छुई मुई वाली नहीं। छुई मुई वो जहाँ पे छुई मुई बनने की जरूरत है वहां छुई मुई बनेगी, जहाँ स्ट्रांग बनने की जरूरत है स्ट्रांग बनेगी। आई हैव प्रिस्क्राइब पल्सटला टू even one MLA, one ex-minister of Maharashtra and corporators, तो कितनी है पल्सटला। तो आप बिल्कुल भी मन में ऐसा मत लाए कि ऐसा कुछ नहीं है।
थैंक यू प्रणीता फॉर वंडरफुल सेशन। एक अलग शेड मिला है आज पल्सेटिला का, और स्टेपिस अग्रिया का इफ ए मिनट सीखने को मिला है। तो थैंक यू, and thank you sir for guiding us and being with us. Thank you so much.